Dear student of standard 8, and today we are going to do chapter number 7, that is environmental changes. Okay. uh, well, we know one thing very well, that our earth is surrounded by an atmosphere. Okay, so if in your exam the definition of atmosphere come by chance, then you are supposed to write the first line, which I am going to read for you. The air that envelops the earth from all sides is known as atmosphere. Okay, so this is the definition you are supposed to write. And right now the whole world is get polluted because of the industry, factories, power station and vehicles. Okay, so if the definition comes in your exam regarding the environmental changes, then you are supposed to write down the those 1.5 line of the second paragraph. The changes that occur in temperature, direction of wind, moisture due to the global warming is known as the environmental changes. So basically environmental changes का means क्या हुआ, सिर्फ टेम्परेचर अप एंड डाउन हो जाता है. ओके, if you are visiting any factory, so you will feel something very hot, if you feel uneasy, so that is called the pollution. And such kind of thing damage the environment. And direction of wind, so these all things are combined together and form the environmental changes. So friends, here is table given to you, and in that table you have to judge whether they are the cold country, hot country. Okay, so here in the first column Russia is given, and in the Russian column heat is 15 degrees Celsius, cold -20. So maximum they are receiving 15 degree. In our at our place 15 degree means severe cold, but for them it's a good temperature. And -20, imagine on 0 degree the water turns into ice. Now annually they are receiving 100 centimeter of rainfall. Now let us move to the second column, Iran, 30 and 10, and they are receiving 50 centimeter of rainfall. So rainfall is very less, but temperature not too extreme and not too low. Talking about Brazil, hot country. Why? Because 38 degrees Celsius is the heat maximum, and cold 25. So they are not going to purchase any sweater and jackets, and they are receiving 250 centimeter of rainfall. So it's okay if you can't purchase the sweater and jackets. You are supposed to buy the umbrellas and raincoat, because rainfall is too heavy over there. Now Norway, heat is 10 degrees Celsius and -40 degree. Well, and rainfall is very less. So again, no investment in raincoats and umbrella, but we are supposed to buy those bulky and heavy clothes to protect your body from the severe cold. Well, if I talk about Philippines, 35 and 30 and 300 centimeter of rainfall. So again, it's a hot country. And Saudi Arabia, 45, so you can't go out at the daytime. And minimum they are having 29, and 10 centimeter of rainfall means no rainfall at all. So friends, you can see कि कुछ कंट्री में बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है एंड कुछ कंट्री में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है. वेल, फंडा इज़ वेरी सिंपल. इफ़ यू आर लाइंग इन द टोरिड जोन मीन्स अर्थ के सेंटर में से पास होता है इक्वेटर, ऊपर टॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन. अगर आपका कंट्री इस बेल्ट में आता है देन यू आर इन टोरिड जोन, आपका कंट्री हॉट होगा. अबाउ द टॉपिक ऑफ कैंसर एंड बिलो द टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, climate gets colder and colder, and you will find such country over there. Okay, so I think there is no confusion after this comparison and all that. Let us move to the next topic, that is what is weather. Weather क्या होता है? Again, question come in your exam, what is weather? Define weather. Okay, so you are supposed to write those two lines. The condition of temperature, rain and moisture, humidity in any region at a particular point of time is known as weather. Suppose right now it is raining outside when I am recording this video. So suppose my friend call me, संदीप और भाई तेरे यहाँ पे मौसम कैसा है, बोला बाहर बरसात हो रही है. एंड इट माइट बी पॉसिबल कि उनके यहाँ पे अभी बरसात नहीं हो रही हो. If my friend calls me from Jammu and Kashmir, then
इफ़ इट इज़ पॉसिबल कि वहाँ पे अभी कोल्ड वेदर हो. ओके, इट्स डिपेंड एंड सब जगह का अलग अलग वेदर होता है. सो गिवन पॉइंट ऑफ टाइम क्या चल रहा है, डेट इज कॉल्ड द एक्चुअल वेदर. ओके, इसमें रेन भी आ गया, टेम्परेचर अप और डाउन, इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, एंड ह्यूमिडिटी means the amount of water present in the air, that is called the humidity. Okay, you can see the map. Those people who are watching the news channels, well, they can understand the first map. Maximum and minimum temperature is given: Delhi 32-19, Lucknow 34 and 18. See friends, 34 means maximum temperature of that place of the given day, and minimum 18. And Kolkata 36-24, Ahmedabad 38 and 22, Mumbai 31 and 24, Chennai 34-24. And friends, that is the actual image I am talking about, the left side. Now right side, if you see, you will see some white color patches. That is nothing but the clouds. So हमारे कंट्री में आज कहाँ कहाँ पर ज़्यादा क्लाउडी एटमोसफियर देखने को मिलेगा, डेट वी कैन जज. You can see most of the part of the India is cloudless, so you will see clear sky over there. Okay, if you are staying in the place like West Bengal, then it's a cloudy atmosphere over there. But if you are staying in Madhya Pradesh, Maharashtra, Gujarat, Rajasthan and all the southern part, then you will find the clear sky. So you should have this kind of basic idea in your mind. Let us move. See, now whether we know it, now what is climate? Again, I'm going to read those two golden lines which can come in your exam. The average condition of air, temperature and moisture for over more than 35 years in any is known as the climate. सो फ्रेंड्स, आपको बस इतना ध्यान रखना है, वेदर एंड क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है. सी, यहाँ पे बोथ द थिंग्स आर सेम. एवरेज कंडीशन, रेन, टेम्परेचर, मॉइस्चर मीन्स ह्यूमिडिटी, सब कुछ सेम है. बट वहाँ पे एट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम था, एंड हियर इट इज़ ओवर 35 ईयर्स, तो उसको हम लोग उसका क्लाइमेट कहेंगे. ओके, यू कैन सी द अपर पिक्चर, आई थिंक इट इज़ बिलोंग फ्रॉम द राजस्थान, एंड द लोअर पिक्चर ऑफकोर्स ये अंटार्कटिका की या हिमालय की, डिपेंड करता है कहाँ की होगी. लेट अस मूव टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द ग्रीन हाउस फार्मिंग. बट बिफोर डेट आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू डेट कि हमारे यहाँ पर हमने अभी एक आई हैड ऑब्जर्व वन थिंग, डेट नाउ डेज द बिल्डिंग हैविंग द ग्लासेस. वेल, ये इंडिया में नहीं होना चाहिए. रीज़न फॉर डेट, सी, कंट्रीज लाइक यूरोपियन कंट्रीज, वहाँ पे क्या होता है, यूजुअली कोल्ड क्लाइमेट होता है. सो उनको फार्मिंग करनी होती है, तो फार्मिंग के लिए क्या चाहिए, इट रिक्वायर सम सूटेबल टेम्परेचर, एंड वो हॉट हो तो ज़्यादा बेटर है. फार्मिंग के लिए हमको हॉट टेम्परेचर चाहिए. सो व्हाट दे डू, वो एक पूरा विंडशील्ड बना देते हैं पूरा का पूरा, एंड उसको ग्लासेस से कवर करते हैं ताकि उसमें जो सनरेज पेनिट्रेट करके आए तो वो क्या करे, ज़्यादा गर्मी क्रिएट करे. सो फॉर दिस पर्पज दे आर यूजिंग द ग्लास ओवर देयर टेरिस. बट एंड वो बिल्डिंग भी इस तरह से बनाते हैं ताकि उनको अंदर गर्म फील हो. बट इन इंडिया हम लोगों ने उनको कॉपी किया और पेस्ट कर दिया, इसलिए फिर हमको क्या हो रहा है, अंदर गर्मी लग रही है, एंड उसके लिए हम लोग बहुत सारी एसी वेस्ट कर रहे हैं. अगेन, एसी से भी ग्लोबल वार्मिंग होता है. एंड सच काइंड ऑफ फार्मिंग वेयर आर्टिफिशियली इन अ प्लेस जहाँ पे हॉट क्लाइमेट क्रिएट किया जाता है ताकि सनराइज ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर सके, दिस थिंग इज़ कॉल्ड ग्रीन हाउस फार्मिंग. आई थिंक यहाँ पे हाउस की स्पेलिंग रॉन्ग लिख रखी है, सो you have to be careful over here. Okay, now moving to the next topic. Now think, why are the doors and windows made of glass in the countries that have the cold climate? Just now I had explained, है ना, कि वो लोग why they are putting glasses in their windows and doors, ताकि अंदर से उनको गर्म फील हो, है ना. और हम लोगों ने क्या किया, ब्लाइंडली कॉपी कर लिया, है ना. और हमको अब अंदर से गर्म लगेगा तो हम लोग फिर, ऐसा नहीं है कि कुछ और करें, फिर एसी लगवाते फिरेंगे, है ना, लाइट बिल ज़्यादा पे करेंगे. नाउ चेंजिंग क्लाइमेट. सी, नाउ डेज वी आर ऑब्जर्विंग सच काइंड ऑफ थिंग डेट इन द फर्स्ट पिक्चर यू विल सी, जो मेरी बिल्कुल इमेज के नीचे है, यू विल फाइंड दिस प्लेस कि यहाँ पे पहले पानी था लेकिन अब
पानी है ही नहीं, सो ज़मीन, सो देर आर सम क्रैक्स डेवलप इन द सॉइल. सेकेंड पिक्चर इज अ डेजर्ट प्लेस, जो मेरे इमेज के नीचे है. ओके. थर्ड पिक्चर इज ऑफ सम मैसी लैंड. well, below my image you will find some of the glacier, so it can be from the Himalaya also, it can be from the Antarctica also. Now you will see the green part. Well, these are the dense forest. And the last movie below my image, you will see the whole area is get flooded, so it is rainfall over there, but it is something uh, more, you can say. Now what is global warming? See, before that I would like कि आप एक experiment करो. Okay, just imagine, close your door and windows of your house, pack yourself, and take some heavy blanket and sleep for 10 minutes. क्या होगा? पसीना पसीना हो जाएगा. You will feel uneasy, है ना. सो दैट इज़ द स्मॉल रिफ्लेक्शन ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग. सो हमारे अर्थ के साथ भी यही हो रहा है. हमारी अर्थ का जो नॉर्मल टेम्परेचर है ना, वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है. ओके. सो आई एम रीडिंग दोज 2 लाइन्स ताकि आपको थोड़ा आइडिया आ जाए. ओके. सो global warming refers to an unequal and continual rise in the average temperature of the earth climate due to the greenhouse gases. Now here आपको सब समझ में आ गया है कि कंटिन्यूसली राइज हो रहा है एवरेज टेम्परेचर का. उसका रीज़न क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस. नाउ ग्रीन हाउस फार्मिंग जस्ट नाउ वी हैड स्टडी, बट व्हाट इज दिस ग्रीन हाउस गैसेस? सो फ्रेंड्स, यू हैव टू वॉच दैट पिक्चर. यू विल सी जो स्प्रे आता है. In spray they are using one chemical that is called CFC. अगर उसको हम लोग शॉर्ट टर्म में, ये तो उसका शॉर्ट टर्म दिया है, बट इट्स फुल फॉर्म इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन. एंड ये क्या करता है? हमारे एटमॉस्फेयर को गर्म करता है. ओके. बिसाइड दिस दो कार आर रनिंग, तो उसके पीछे से जो स्मोक निकलता है वो भी हमारे एटमॉस्फेयर को गर्म करता है. चिमनीज में से जो धुआं निकल रहा है वो सब कहाँ जा रहा है? एटमॉस्फेयर में जा रहा है. एंड इससे क्या हो रहा है? हमारा एवरेज टेम्परेचर राइज हो रहा है. सो दीज आर द सम गैसेस, एंड इन गैसेस को हम क्या कहेंगे? ग्रीन हाउस गैसेस. ओके. आई एम रीडिंग द थर्ड लाइन. इट अकर व्हेन सर्टेन गैसेस इन द एटमॉस्फेयर एंट्रैप्ड एंड इन्फ्रारेड रेडिएशन, एंड ड्यू टू इट हमारा जो एटमॉस्फेयर डिस्टर्ब हो रहा है, एंड द यूवी रेज आर डायरेक्टली पेनिट्रेटेड टू अवर अर्थ, एंड इससे हमारे देश को प्रॉब्लम हो रहा है एंड हमको गर्म फील होता है. एंड इसी सब को हम लोग क्या कहेंगे? ग्लोबल वार्मिंग. ओके. आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा. सो स्प्रे व्रे यूज़ करना बंद कर दो. ओके. इतना तो हम लोग कर ही सकते हैं. वेल, डू इट योर सेल्फ. कवर योर सेल्फ विद अ ब्लैंकेट फॉर 10 minutes. Just before few minutes I had told you to do this, and what did you experience? This is what the greenhouse effect. See friends, ग्रीन हाउस इफेक्ट का हम पे इफेक्ट क्या होता है? सी कहीं पे नॉर्मल जितनी बरसात होती है ना, तो वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही बरसात हो गई, और कुछ जगहों पे जो कभी बरसात बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे बरसात होती नहीं है. ओके. अभी सपोज़ कर लो कि अभी स्नोफॉल स्टार्ट हो जाए, तो ये कोई स्नोफॉल का टाइम नहीं है, बट स्नोफॉल हो रही है, मतलब कुछ ना कुछ टेम्परेचर ऊपर नीचे हुआ है. डेट इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग. So here are the some of the articles collected from the newspaper, and I am going to read each and every news for you. Average increase of 5 degrees Celsius in the temperature of Western Europe had experienced. So यूरोपियन कंट्री का जो एवरेज टेम्परेचर था ना, अब वो 5 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो गया है. इससे हो गया ग्लोबल वार्मिंग. नाउ 14 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इन दार्जिलिंग रीच टू मैक्सिमम 28 डिग्री. सो दार्जिलिंग इज ए सच काइंड ऑफ प्लेस जहाँ पे कभी भी 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गया ही नहीं, बट अब चला गया है. रीजन? ग्लोबल वार्मिंग. स्नोफॉल इन डेजर्ट. वाह. सऊदी अरेबिया में तो 5 सेंटीमीटर बरसात नहीं होती है और डेजर्ट में स्नो गिर रहा है. वाह. नाउ मुंबई रिसीव्ड 942 मिलीलीटर रेन इन अ डे इन 2005. ओके. डेट वॉज अ एपिक डे. आप इस पे नेशनल ज्योग्राफी पे और डिस्कवरीज पे इसके आप एपिसोड्स भी देख सकते हो कि एक्चुअली उस दिन क्या हुआ था. सो नॉर्मल डे में बहुत ज़्यादा बरसात हो गई, सो सब कुछ अटक गया.
एंड इंक्रीजिंग टेम्परेचर इन ऑस्ट्रेलिया, सो ऑस्ट्रेलिया का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया. सुंदरवन आर सबमर्जिंग, तो सुंदरवन के जो फॉरेस्ट है वो भी अब डूब रहे हैं. रिडक्शन इन द 5 किलोमीटर ऑफ कुंभू स्नो रिवर इन नेपाल, सो देर इज अ रिवर इन द नेपाल कोल्ड कुंभू एंड उसका ग्लेशियर अब धीरे धीरे कम होते जा रहा है. एंड आइस कैप ऑफ साइज 3250 स्क्वायर किलोमीटर मेल्ट विद इन 35 डेज इन अंटार्कटिका. सो इतना बड़ा जो मतलब आइसबर्ग था वो पूरा, आइसबर्ग यानी एक पहाड़ जो मतलब पूरा बर्फ़ से बना हुआ था, वो पूरा पिघल गया 35 डेज में. एंड सोर्सेज ऑफ रिवर्स आर ड्राइंग अप. ओके, आई यूज टू रिमेंबर जब मैं लास्ट ईयर हरियाणा गया था ना, तो यमुना रिवर पूरी सूख चुकी थी. बट आज से मैं 10 साल पहले गया था ना, तब तो उसमें एक पर्टिकुलरली एक कॉर्नर से पानी फ्लो कर रहा था, लेकिन अब तो वो भी फ्लो नहीं कर रहा है. सो ये सब क्यों हो रहा है? बिकॉज हमारा एवरेज टेम्परेचर बढ़ रहा है एंड दिस ऑल आर द इफेक्ट ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग. ओके, लेट अस मूव. हाउ डज द अर्थ गेट हीटेड? नाउ साइंटिस्ट हैज डन सम रिसर्च वर्क एंड दे हैड ऑब्जर्व कि हमारी अर्थ कैसे कैसे गर्म होती है. सो दे हैड डिस्कवर्ड दैट there are certain greenhouse gases like carbon dioxide, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो हमारे स्प्रे में यूज होता है एंड फ्रिज में भी यूज होता है, एंड हालो कार्बन. दिस आर सम ग्रीन हाउस गैसेज विच आर इंक्रीजिंग अवर टेम्परेचर एंड they are contributing in the global warming. Okay, and in the bold letter they had mentioned something, just for the second paragraph, increase in the temperature by 0.6 डिग्री सेल्सियस इन लास्ट 100 ईयर्स. सो कंपेयर करें लास्ट 100 ईयर्स में, तो हमारा जो अर्थ है वो 0.6 डिग्री सेल्सियस गर्म हो चुका है. वाई? बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग ओनली. सो यू कैन सी अर्थ के चारों तरफ बहुत ही डेंजरस गैसेज हैं जो रोटेट कर रही हैं, जो हमारी अर्थ के लिए सही नहीं है. यू कैन सी इन दिस चार्ट कि जो फ्लो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है. ओके, एंड ये क्या शो कर रहा है कि हमारा टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है. नाउ PPM, ये एक वर्ड आता है, दोज हु आर वॉचिंग द न्यूज़ उनमें एयर क्वालिटी इंडेक्स दिखाते हैं एंड उसमें PPM एक वर्ड आता है. PPM होता है पार्ट पर मिलियन एंड 280 है, तो अगर वो 280 है तो हम लोग उसको 0.28% करेंगे. ओके, मैक्स हमने पढ़ा है, पॉइंट के बाद हर नंबर को हम लोग इंडिविजुअली प्रोनाउंस करेंगे. सो यार द चार्ट इज गिवन. नाउ थिंक, सी यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है. वी नो डैट डेफिनेट क्वालिटी ऑफ शुगर एंड सोल्ट. ओके, डन. सी व्हाट हैपन फ्रेंड्स, आप चाय बनाते हो. ओके, आप एक दिन क्या करना, जो शुगर है ना ज़्यादा डाल देना, तो घर वाले कंप्लेन करेंगे ये कैसी चाय बनाई है, मीठी मीठी. नेक्स्ट डे आप थोड़ी चीनी कम मिलाना, तब के घर वाले कंप्लेन करेंगे ये कैसी चाय बनाई है, एकदम फीकी फीकी. एंड नाउ आप जब थर्ड डे बनाओ ना, तो बैलेंस प्रपोर्शन में रखना, तब आपके घर वाले आपको अप्रिशिएट करेंगे, हाँ आज शक्कर बराबर है, ना कम ना ज़्यादा. सो फ्रेंड्स, सेम थिंग हैपन विद द सोल्ट ऑल्सो. अगर खाने में नमक ज़्यादा हो जाए तो खाने का टेस्ट स्पॉइल्ड हो जाता है, और अगर कम हो तो खाना फीका बनता है. सो सी, बैलेंस इज रिक्वायर. सो हमारा जो नेचर है ना, हर गैस बैलेंस प्रपोर्शन में ही है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, बैलेंस के जो नेचर का बैलेंस है उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, एंड ड्यू टू इच हमारा ग्लोबल वार्मिंग फेस करना पड़ रहा है. एंड द रीज़न इज़ कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड का एक प्रपोर्शन है जो हम लोग एटमॉस्फेयर में ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहे हैं, जो नहीं होना चाहिए. ओके, लेट अस मूव अहेड. एंड हियर आर द सम ऑफ द थिंग्स आर गिवन कि ये चीज़ें कितना पॉल्यूशन करती हैं. सी, थर्मल पावर स्टेशन अगर वो 200 मेगावोल्ट का है, तो वो पूरे साल में 9 लाख टन, आई रिपीट 1 टन मीन्स 1000 किलोग्राम. सो इतना वो क्या करता है, पोल्यूशन क्रिएट करता है. मोटर कार इन अ ईयर 17 करोड़ टन्स कंट्रीब्यूट करती है ग्रीन हाउस इफेक्ट में. AC अगर हम लोग दिन में 2 आवर्स चलाते हैं 24 आवर्स में, सो वो 2230 किलोग्राम ग्रीन हाउस गैस को इफेक्ट करती है. सो हमारा TV, ट्यूबलाइट, फ्रिज, ये सब क्या कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट ही कर रहे हैं. नाउ मीथेन. मीथेन का केमिकल इक्वेशन है CH4. यू डोंट निगलेक्ट सम पॉइंट, डेट पॉइंट, एंड आपको ये ध्यान रखना है, एग्जाम में भी आ सकता है ना. मीथेन CA1, CH2, CH3, CH4, कोई भी ऑप्शन आ सकता है. सो यू हैव टू बी केयरफुल. नाउ
सी हमारे नेचर में मीथेन का एक बैलेंस है, लेकिन अगर वो ज़्यादा आ जाता है तो क्या होगा, प्रॉब्लम होगी। सो यू कैन सी जो मीथेन पहले 315 ppm था 774 के आसपास, अब वो इंक्रीज होने लग गया है। ओके, इवन वी ह्यूमन बींग्स एंड ऑल एनिमल्स, हम लोग क्या करते हैं, वी आर इनहेलिंग द ऑक्सीजन एंड एक्सेल द कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारा जो मेटाबॉलिज्म होता है, हम जो एक्सेल करते हैं ना, उसमें भी मतलब कुछ ना कुछ मीथेन का प्रपोजन होता है। तो हमारे पूरे वर्ल्ड में जितने भी एनिमल्स हैं ना, वो पूरे साल पूरे ईयरली 14 करोड़ टन्स मीथेन रिलीज़ करते हैं। अगर हम लोग जो पैडी मीन्स राइस जो होता है, उसका कल्टीवेशन करते हैं तो उसमें 15 करोड़ टन मीथेन रिलीज होता है। एंड जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है उससे 700 करोड़ टन्स होता है। तो सब ये सब क्या करता है, एटमॉस्फेयर को सी वो नेचर में है, बट ज़्यादा अमाउंट में जाता है तो क्या होता है कि डिस्टर्ब होता है। एंड हम लोगों ने न्यूज़पेपर के आर्टिकल तो देख ही लिए। वेल, थिंग्स टू नो, एंड यहाँ पे आपको कुछ समथिंग स्पेशल जानने मिलेगा। ऑल द थिंग्स यूज्ड बाय ह्यूमन इन वन डे हैज़ 80% ऑफ एयर इन इट, है ना। हम लोग जो खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, पानी का केमिकल फॉर्मूला तो पता है ना, H2O। तो वो O क्या है, ऑक्सीजन ही है ना। ओके, सो हम लोग जितना भी हम लोग खाना खाते हैं वो सब उसमें 80% तो एयर ही होता है। एंड मैन ब्रीथ्स 22,000 टाइम्स एवरी डे। नाउ वॉच, मैं जब ब्रीथ कर रहा हूँ, इन आउट, 1 हुआ, 2 हुआ, तो ऐसा हम लोग पूरे दिन में 22,000 टाइम मोर और द लेस करते हैं। हाँ, कोई एथलीट है, हैवी वर्कआउट करता है तो 24 तक पहुंच जाता होगा, समथिंग लाइक डेट। एंड इन दिस वे अ मैन कंज्यूम 16 kg ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरमेंट पर डे। कैलकुलेट करो, एक इंसान अगर दिन में 16 kg ऑक्सीजन यूज़ करता है, देन देर आर 750 करोड़ पीपल आर देयर इन दिस वर्ल्ड। मल्टीप्लाई कर लो। ओके, कैलकुलेटर के बाहर नंबर निकल जाएंगे। एनी हाउ, सो जैसे मीथेन एनवायरनमेंट में ज़रूरी है, वैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड, बट हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, उसका प्रपोज हम नहीं बढ़ा रहे हैं। 270 से 319 हो गया है। सो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें क्या कर रही है, ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट कर रही है। नाउ वी आर गोइंग टू सी द मोस्ट डेंजरस गैस, दैट इज CFC, that is used in our plastic, refrigerator, AC, circuits and all that. So such kind of things are contributing in our uh, global warming. And see, we are given some micron 1 to 10. So प्लास्टिक के भी कुछ माइक्रॉन्स होते हैं, एंड वी हैव टू बी केयरफुल while selecting them. Now things to know. As per the resolution passed in the UN in 23rd January 1995, 16 September is observed as a ozone day. So friends, remember 16 September ozone day. Again 16 September ozone day. And after 1980, 2007 was the hottest year. सो यूजुअली हर साल का एक एवरेज टेम्परेचर निकलता है, एंड अंडर देयर साइंटिस्ट ऑब्जर्वेशन दिस टू आर द मोस्ट हॉटेस्ट ईयर ऑफ द decade, we can say. Effect of global warming, you can see there are 3 parallel images are given to you in the later part of the slide. May 12 2001, July 1 2003, and June 19 2006. वेल, आपको यहाँ से कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं मिलेगा कि हो क्या रहा है, बट यू विल सी जो फर्स्ट रैक है बिल्कुल टॉप कॉर्नर पे, देखो आपको मैं जहाँ फिंगर बता रहा हूँ, आपको यहाँ पे देखना है, वहाँ पे थोड़ा बहुत बर्फ़ जमा हुआ है। सेकंड पार्ट में थोड़ा सा बर्फ़ हट गया है, एंड थर्ड पार्ट में ज़्यादा बर्फ़ हट गया है। मीन्स ये जो ग्लेशियर है ये मेल्ट डाउन हो रहे हैं, पिघल रहे हैं। सो ये क्या हो रहा है, इन शॉर्ट फ्यूचर में अगर ऐसा ही होता रहा, सो हिमालय से कोई रिवर ओनली रेनी सीजन में फ्लो होगी, उसके बाद वो फ्लो होगी ही नहीं। ओके, सो अब किया क्या जाए, बहुत प्रॉब्लम डिस्कस कर लिया। नाउ वी आर गोइंग फॉर द सॉल्यूशन। वेल, हमको सोलर एनर्जी यूज़ करनी चाहिए, हमको विंड एनर्जी यूज़ करनी चाहिए। ओके, वी आर सपोज टू यूज़ बायोमास, जो हमारी कुकिंग गैस में काम आ सकता है। टाइडल एनर्जी, जिससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो एनवायरनमेंट को पॉल्यूट भी नहीं करेगी। ओके, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, आई थिंक ये 2 बार ले लिया है मैंने। ओके, एंड well, now
ग्लोबल वार्मिंग तो हो गया है, अब ग्लोबल वार्मिंग को हम लोग कंट्रोल कैसे करेंगे? सो मेजर टू प्रिवेंट ग्लोबल वार्मिंग, रिड्यूस द यूज ऑफ द सोर्सेज दैट रिलीज CO2। सो हमको वो सारी चीज़ें कट डाउन करनी पड़ेगी जिससे CO2 रिलीज होता है। अफॉरेस्टेशन, सी फ्रेंड्स, आपने वर्ड सुना होगा डिफॉरेस्टेशन। जब जंगलों को काटा जाता है ना तो उसको कहते हैं हम लोग डिफॉरेस्टेशन। लेकिन जब कोई ज़मीन पे हम लोग ज़्यादा पेड़ पौधे लगाते हैं, जंगल नए बनाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अफॉरेस्टेशन। तो हमको जितना हो सके ट्रीज लगाने चाहिए। आफ्टर ऑल हमको ऑक्सीजन ही देते हैं ना, और हम लोग रोज़ 16 kg ऑक्सीजन तो कंज्यूम करते ही हैं। जितने ज़्यादा ट्री होंगे उतने ज़्यादा ऑक्सीजन अवेलेबल होगा। ग्रोइंग ट्री हेल्प टू रिड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड। सो जितने ट्रीज होंगे उतना कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा। अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक। ओके फ्रेंड्स, सो सब स्टूडेंट्स, आई एम गिविंग यू वन रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप अपने पेरेंट्स के साथ जब भी घूमने जाओ, सो कैरी दोज बैग्स जो मतलब नॉर्मली क्लोथ से बने होते हैं। नेवर यूज़ प्लास्टिक। ओके, सो ये कहना कि हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर रही है। ऑप्टिमम यूज ऑफ मैन्युअर एंड पेस्टिसाइड। ओके, जैसे हम लोग अपने खाने में नमक डालते हैं, शक्कर डालते हैं, शुगर डालते हैं, वैसे ही फार्मर्स को मैन्युअर और पेस्टिसाइड को एक लिमिटेड अमाउंट में यूज़ करना चाहिए। ज़्यादा यूज़ करेंगे तो क्या होगा? प्रॉब्लम हमको ही होगा। अडॉप्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग। ओके, ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ अ वेरी क्लीन फार्मिंग जो हमारे बॉडी के लिए बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होता है। एड बायोटिक इन द फूड फॉर एनिमल्स। सो एनिमल्स के खाने में भी ध्यान रखना है। हमको अपने हाउस होल्ड अप्लायंसेस को भी ऑप्टिमम तरीके से यूज़ करना है। हमको प्रॉपर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट करना है, यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे 1 किलोमीटर दूर मेरे घर से दूर जाना है तो मैं कोई कार में नहीं निकलूँगा शानो शौकत के साथ। वो कार क्या कर रही है? पोल्यूशन करेगी। मैं चल के जाऊँगा तो ज़्यादा बेटर है, हेल्थ भी अच्छी रहेगी। ओके, ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करना चाहिए। वेल वो तो हमारे कंट्रीज़ में बहुत अच्छा वर्कआउट कर रहा है। हमको अपनी बिल्डिंग ऐसी बनानी चाहिए जहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन हो, ताकि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी सेव करें। तो हमारे जितने भी आर्किटेक्चर जो भाई साहब हैं, तो ये ग्लासेस वाली बिल्डिंगें बनाना बंद कर दो। ओके, अंदर गर्मी होती है और हमारे AC लगाने पड़ते हैं, सो इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट ही जा रही है ना। ओके, एंड इंक्रीज द इको फ्रेंडली पेपर। हमको पेपर ऐसे यूज़ करने चाहिए जो एनवायरनमेंट के अंदर एनवायरनमेंट को नुकसान ना करे। एंड ज़्यादा से ज़्यादा ट्री ग्रो करने चाहिए। हमको अपने सारे रिसोर्सेज को ऑप्टिमम तरीके से यूज़ करना चाहिए। हमको पेट्रोल बहुत जुडिशसली यूज़ करना चाहिए। वेस्टेज तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर 2-3 किलोमीटर जाना है तो वी कैन यूज साइकिल ऑल्सो, हेल्थ भी अच्छी रहेगी। ओके, एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये वहाँ पे ज़्यादा होता है जहाँ पे बरसात कम होती है। एंड स्पेशली CNG एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को यूज़ करना चाहिए। नाउ थिंक, what kind of residence should we have to protect ourselves from the effect of the increase in the temperature? तो हमको अपने घर को इस तरह से प्लान करना चाहिए ताकि वो ठंडा रहे। ओके, हमको ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा फील ना करनी पड़े। नाउ यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, टू मेक 1 टन ऑफ पेपर। अगर हमको 1000 किलोग्राम पेपर बनाना है ना, तो उसके लिए 4400 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है। 30,000 लीटर्स ऑफ पानी यूज़ होता है, एंड 11 ट्रीज को कट करना पड़ता है। आई थिंक अब गवर्नमेंट को ऑनलाइन लेक्चर हो ही गए, ऑनलाइन एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवा लो, है ना। बहुत सारी आंसर सीट्स और बहुत सारे ट्री कटने से बच जाएंगे, है ना। इतना तो हम लोग कर ही सकते हैं। अगर मेरा ये वीडियो किसी इन शॉर्ट वायरल हो जाए और कोई मिनिस्टर ने सुन लिया तो भाई सोचना। हाँ, अच्छा सजेशन दे दिया। नाउ सी, लीडर्स फ्रॉम द वेरियस कंट्रीज एंड जो प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, इन लोगों को सब पता है कि ये सब हो रहा है, तो उसको कंट्रोल कैसे किया जाए। सो वो लोग क्या करते हैं, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए उन लोगों ने ग्लोबल पॉलिसी बनाई, एंड ये लोग सब एक जगह इकट्ठे हुए। ये पहली बार कब हुआ था? 1972। कंट्री कौन सा था? स्वीडन। एंड जगह का नाम था स्टॉकहोम। ओके, अटपटा सा नाम है, यूरोपियन लोग ऐसे ही नाम रखते हैं। वेल, यहाँ पे उन लोगों ने सोचा कि हम लोग अपना जो एनवायरनमेंट है क्लीन रखेंगे, एनवायरनमेंट के लिए जो चीज़ें डेंजरस है उसको अवॉइड करेंगे। एंड फिर से ये मीटिंग हुई थी लास्ट टाइम, एंड दैट इज़ इन द रियो दी जेनेरियो, इट इज़ इन ब्राज़ील। एंड लास्ट टाइम ये लोग कब मिले थे? कोपेनहेगन, इट्स अ नेम ऑफ अ प्लेस, एंड द कंट्री नेम इज डेनमार्क। सो टाइम टू टाइम लीडर्स फ्रॉम द डिफरेंट कंट्रीज़ ये लोग मिलते हैं
एंड ये लोग बात करते हैं, कस्में खाते हैं, कार्बन कट करेंगे, ग्रीन हाउस गैसेस को कम करेंगे एंड ऑल दैट। ओके, हमारे कंट्री ने क्या किया? वेल, बहुत सारे स्टेप किए। पहले जितनी भी ऑटो रिक्शा थी ना, वो पेट्रोल पे चलती थी। हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया? सबको सीएनजी में कन्वर्ट कर दिया, है ना। अब क्या हो रहा है? हम लोगों ने सारी बसें जो डीजल पे चल रही थी उसको भी सीएनजी में कन्वर्ट कर दिया। अभी तो मेट्रो भी स्टार्ट कर दी है। अब जो कार बनाने वाली जो जितनी भी यूनिट्स हैं, वो जैसे फॉर एग्जांपल टेस्ला, वो भी इलेक्ट्रिक मोटर कार निकाल रही है। सो गवर्नमेंट क्या कर रही है? स्टेप बाय स्टेप अपना कार्बन का यूज़ है वो कम कर रही है। ओके, एंड इसमें वर्ल्ड बैंक और बहुत सारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट हैं जो मतलब हेल्प भी करते हैं। सो अगर हम लोग बात करें कौन कितना कार्बन यूज़ करता है, सो हियर आर सम डेटास आर गिवन टू यू दैट समवेयर इन बिटवीन ऑन एन एवरेज सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड एमिट्स 4.5 मेट्रिक टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो हर दुनिया का हर इंसान इतना कार्बन यूज़ करता है, बट इंडियन सिटीजन एमिट ओनली 1.2 मेट्रिक टन। मीन्स हम लोग 4 गुना कम पॉल्यूट कर रहे हैं। गुड, आज प्राउड हो रहा है अपने कंट्री वालों पे। एनी हाउ, एंड तो सबसे ज़्यादा पोल्यूशन फैला कौन रहा है? वेल, यूएसए, पर सिटीजन 20.6 मेट्रिक टन। सो यूएसए वालों को ज़्यादा सुधरने की ज़रूरत है, हम लोग तो इतना पोल्यूशन फैलाते भी नहीं है। ओके फ्रेंड्स, सो हियर इज़ योर होमवर्क, you are supposed to fill in the blanks 1 2 3 4. Okay, so this is our chapter number 7, environmental and changes. Hope so you will like it. Thank you very much. Have a nice day.